Hello students, today we'll start integration by parts. Integration by parts. Before this we have done two methods of integration, that is integration by substitution and integration by partial fraction. Today we'll do integration by parts. There is a theorem, एक theorem है हमारे पास. What is that? If fx and gx are differentiable function, if fx and gx are differentiable function, then integration of fx into g dash x is equal to f of x into g of x minus whole integral derivative of fx into gx dx. So first of all we will try to learn this theorem. Proof. Since fx and gx are differentiable, these are differentiable functions, it is given for us. Therefore, what is the derivative of fx into gx? We know the product rule. ये हमने पढ़ा है +1 में. डेरिवेटिव ऑफ fx into gx किसके बराबर होगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू derivative of first. Or how we can write it? fx into g dash x plus gx into f dash x. Now if you will take integration on both sides, then what will happen? Integral of derivative of fx gx is on integration. We know integral or integration is the antiderivative process. That means when we will take integration of this one, derivative of fx into gx, what will happen? Sign of integration will cancel with derivative and we will get fx into gx, क्योंकि जो हमारा इंटीग्रल है वो डेरिवेटिव का उल्टा है, इसलिए ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा fx into gx. And on the right side we will have fx into g dash x plus gx into f dash x dx. Now we know the summation rule. What is that? This will be equal to integration of first plus integration of second. Integration of first plus integration of second. Now in the theorem what we have to prove? We have to prove that integration of fx g dash x, this one. So this implies integration of fx into g dash x dx is equal to what? Fx into gx minus whole integration gx into f dash x dx. So the theorem is proved. Now see how we can interpret this result. Or
integration of fx, suppose instead of this we are having gx, then what will happen? We can write this result as fx gx is equal to what? fx into integral of gx. Why? Because again ये जो डेरिवेटिव है ये एंटी प्रोसेस है, इंटीग्रल जो है एंटी प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है किसका? डेरिवेटिव का। तो अगर हम यहाँ पर जी डैश एक्स लेते हैं तो ये इंटीग्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगेन होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। So this is known as integration by parts. That means if we are having the integral of the type fx into gx, then that would be equal to fx into integral of gx minus derivative of fx into integral of gx whole integral. So therefore integration of first into second function, this will be equal to what? First function into integral of second minus whole integral derivative of first into integral of second. You can write also in words first function into integral of second minus whole integration डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। ये आपको याद रखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय यूजिंग दिस थ्योरम व्हाट इज दैट? दैट इज वी हैव यूज्ड द प्रोडक्ट रूल ऑफ two functions. So we have seen अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं उनका प्रोडक्ट है तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन ले लेंगे और दूसरे का इंटीग्रल माइनस पूरा इंटीग्रल, पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रल। अब क्वेश्चन अराइजेज कि हम इसमें जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो क्या लें, कि किस फंक्शन को पहले लें और किस फंक्शन को बाद में लें। सो इसके लिए एक आपको याद रखना है आइलेट, एक वर्ड है आइलेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारे को ऐसा एक प्रोसेस है जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन सा फंक्शन पहला लेना है, किस फंक्शन को दूसरा लेना है, ताकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो आसान हो सके। इजीली वी कैन इंटीग्रेट एनी इंटीग्रल। तो उसमें सेकंड है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। तीसरा है अलजेब्रिक फंक्शन, चौथा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और पांचवा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यू हैव टू डिसाइड कि हम किस फंक्शन को फर्स्ट लें और किसको सेकंड। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस रहेगा हमारा। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये अगर 5 टाइप के फंक्शंस हैं, कोई भी हमारे पास 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट आता है तो उसमें जो ऑर्डर ऑफ रेफरेंस इन लेटर्स का है ILATE,
वही ऑर्डर ऑफ रेफरेंस हमने अपने फंक्शंस का लेना है। अगर आई पहले आता है, आई और ई है, तो आई को पहला, ई को दूसरा। अगर आपका एल और ए है, मीन्स एक लॉगरिथमिक फंक्शन एक अलजेब्रिक है, तो हमने पहले लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन लेना है और जो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है उसको सेकंड फंक्शन लेना है। ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा, ये हमारा सेकंड आ जाएगा उस केस में। अब देखिए, अगर हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शंस को मार्क करते हैं 1 और 2, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस मेथड से हम कोई भी इंटीग्रल जो है उसको निकाल सकते हैं। एक और थ्योरम इसमें है, व्हाट इज दैट? इफ इंटीग्रेशन ऑफ gx dx is equal to gx, then integral of gx into fx plus f dash x dx is equal to gx fx plus c। और इसको हम दूसरे कैसे लिख सकते हैं? और ex इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ex इंटू fx plus f dash x we are having such type of function, then this will be equal to what? ex e raised to power x into fx plus c। ये एक ही बात है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई रेज़ टू पावर एक्स का जो इंटीग्रल है वो ई रेज़ टू पावर एक्स ही होता है। सो आइदर यू राइट इट लाइक दिस और ऑल्सो वी कैन राइट इट बाय दिस वे कि ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू कोई भी फंक्शन है हमारे पास दूसरा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, वो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव उसके साथ है, बीच में सम है, तो वो इसके बराबर होगा। कैसे? देखिए, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बाय समीशन लॉ क्या करेंगे हम? अलग अलग से दोनों का इंटीग्रेशन ले सकते हैं। एफ डैश एक्स डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, सेकेंड पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को क्या करना है भाई, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उनको मार्क करना है 1 and 2। और ऑर्डर ऑफ रेफरेंस क्या है हमारा? ऑर्डर ऑफ रेफरेंस है हमारा आइलेट। अब थोड़ा ध्यान से देखें, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास और एक एफ एक्स जो है, कोई भी एनी वन, चाहे वो आप इन्वर्स ले लीजिए, चाहे आप लॉगरिथमिक ले लीजिए, चाहे अलजेब्रिक ले लीजिए, वो इससे पहले ही आते हैं। तो एक्सपोनेंशियल को हम क्या ऑर्डर देंगे? 2, इसको 2 देंगे और ये हमारा फर्स्ट आएगा। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन हमारा है एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। ये क्लियर हो गया? यू फॉलोड दिस पॉइंट? ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। व्हाई इट इज? दिस इज बिकॉज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। अब देखिए ये किसके बराबर आ गया? प्लस ये हमारा सेकंड पार्ट जो है उसको एज इट इज लिखेंगे हम, दैट इज एफ डैश एक्स डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर? देखिए, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल का ई रेज टू पावर एक्स रहेगा। इधर देखिए इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, और
ई एक्स डी एक्स प्लस ये हमारे पास ऑलरेडी है एफ डैश एक्स डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू ई एक्स प्लस सी. ये यहाँ पर देखें, ये हमारा प्रूफ हो गया थ्योरम. नाउ अब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे को समझ आ गया कि हमारे पास यदि दो फंक्शंस का कोई भी फंक्शन है उनका प्रोडक्ट है, यदि सिंगल फंक्शन है उसको हम इनटू एनी नंबर लिख सकते हैं, वो अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा. उन दो फंक्शंस का जो इंटीग्रल है वो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम निकाल सकते हैं. नाउ विल स्टार्ट टू सॉल्व द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6. exercise 7.6. So what is NCERT exercise 7.6? This is 7.6 exercise. Integrate the functions, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, x इंटू साइन x साइन x को इंटीग्रेट करना है. सो स्टार्ट टू डू दिस प्रॉब्लम. Question 1. Integrate x into sin x dx. Now see, we are having product of two function. हमारे पास दो हैं, एक है x और दूसरा है sin x. अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इजीली कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रेफरेंस क्या रखें, किसको फर्स्ट लें किसको सेकंड लें. सो सिंपली आइलेट हम याद रखें. सो यहाँ पर एक हमारे पास एल्जेब्रिक है x और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है. एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक एल्जेब्रिक है. तो किसको फर्स्ट मानेंगे? एल्जेब्रिक को. क्यों? a पहले आता है, देखिए t से पहले आता है a. सो ये हमारा एल्जेब्रिक जो फंक्शन है x, ये फर्स्ट रहेगा और ये रहेगा हमारा सेकंड. तो चलिए क्या है हमारा पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड minus whole integration derivative of first into integral of second. Why? Because integration by parts. Integration by parts. So ये क्या आ गया हमारे पास? x इंटू साइन x किसका डेरिवेटिव, किसका हमारा डेरिवेटिव है? माइनस कॉस एक्स. मतलब साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा माइनस कॉस एक्स. डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 हो गया, अगेन माइनस कॉस एक्स डी एक्स. सो व्हाट वी आर गेटिंग, माइनस को पहले ले लो, एक्स कॉस एक्स माइनस इंटू माइनस बाहर लिया है इसको, इस नेगेटिव साइन को जब बाहर लेके आए तो ये पॉजिटिव बन गया. और 1 into something is the same cos x dx. So this is equal to what? Minus x cos x. और ये किसका डेरिवेटिव है? sin x का. मतलब cos x का इंटीग्रल क्या हुआ? sin x plus c, where c is the constant of integration. We know constant of integration क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि एक फंक्शन के बहुत से इंटीग्रल हो सकते हैं. वाई? द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0. तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी. नाउ हम कुछ और प्रॉब्लम्स इस एक्सरसाइज की करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट देखिए, इसमें एक साइन एक्स एक्स ये ले लेते हैं हम. फोर्थ प्रॉब्लम, फोर्थ वन, ये हमारे पास है x log x, x log x. So question number 4, इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास है x log x. अब देखिए अगेन आइलेट, हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है? एक लॉगरिथमिक है, एक एल्जेब्रिक है. तो लॉगरिथमिक पहले है, एल्जेब्रिक बाद में है. सो फर्स्ट किसको जाएगा? लॉगरिथमिक फंक्शन को. और सेकंड किसको जाएगा? हमारा
एल्जेब्रिक फंक्शन को। चलिए फिर वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into integral of second ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए यहाँ पर अब फर्स्ट फंक्शन हमारा log x है, x का इंटीग्रल क्या होगा, x रेज़ टू पावर n का n+1 डिवाइडेड बाय n+1, सो 1 + 1 2, यहाँ भी 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x और x²/2 dx, x का इंटीग्रेशन, अगेन इसका इंटीग्रेशन है, ये कैंसल हो गया, सो वी आर गेटिंग x²/2 log of x minus half we can take out, this is x dx. So what we are getting here, this is equal to x²/2 log of x minus क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, अगेन x²/2 plus c. So this is equal to x²/2 log of x minus x²/4 plus c, where c is the constant of integration. So this was fourth problem. अब इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स हम करने की कोशिश करते हैं इसी एक्सरसाइज की, NCERT 7.6। सो ये हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8। सो वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस 8th प्रॉब्लम, दैट इज x into tan inverse x. So we'll solve 8th problem. Question number 8. Integral of x into tan inverse x dx. Again आइलेट ध्यान देंगे यहाँ पर सारे, यहाँ पर हमारे पास एक एल्जेब्रिक है और एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहला है, एल्जेब्रिक बाद में आता है, ये दूसरा आएगा। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into integral of second. Why? Because integration by parts. चलिए tan inverse x into what is the integration of x, x²/2 minus whole integration derivative of tan inverse 1/1 plus x² into integral of second x²/2 dx. Right? So x²/2 tan inverse x minus, how we can write it? देखिए इसको हम चेंज कर सकते हैं, एक तो 1/2 वी कैन टेक इट आउट एंड 1 + x² minus 1 by 1 + x² dx। कुछ नहीं किया, हमने एक ऐड कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि हमारे पास x² रहे। सो यहाँ पर x²/2 क्यों किया ये, बिकॉज ये 1 + x² 1 + x² कैंसिल हो जाएगा और
1/1+x² जो है वो हमारा इजीली यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगा. सो -12 integration of 1+x² by 1+x² -1/1+x² dx. सी इसको हमने एक अलग कर दिया, इस 1 को अलग कर दिया. सो x²/2 tan inverse x माइनस हाफ इंटू 1 dx. ये कैंसिल हो गया, सेम है, कैंसल. माइनस integration of 1/1+x² dx. But when you will open the bracket, minus into minus is plus. So this is equal to x²/2 tan inverse x minus x/2 plus 1/1+x². किसका? हाफ. इधर भी आएगा बिकॉज ये देखिए ये इस तरह से है, हाफ वी हैव टेकन इट आउट. तो ये जब इंटीग्रल हमने दोनों का लिया, इस पार्ट का भी इंटीग्रल लिया, इस पार्ट का भी इंटीग्रल लिया, ये के पार्ट है कि ये पार्ट है, तो हाफ से दोनों मल्टीप्लाई होंगे. सो ये आ गया हमारा tan इनवर्स x प्लस सी. बिकॉज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1+x². So this is equal to half tan inverse x plus c, where c is the constant of integration. And this was our problem number 8. Now we can do some another problems. 7.6. So एक्सपोनेंशियल वाला एक प्रॉब्लम लेते हैं. 17th. इन दिस प्रॉब्लम इट इज x e⁻x अपॉन 1+x². इसको करने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 17th. व्हाट इज द प्रॉब्लम? x ex अपॉन 1+x होल स्क्वायर dx. अब थोड़ा इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लगा सकते हैं, लेकिन पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो इजी रहेगा हमारे लिए करना. सो इसको हम देखिए, इस x को ऐसे लिख सकते हैं जैसा हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया. वी कैन राइट इट लाइक दिस. कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक हमने इसमें ऐड कर दिया और एक हमने इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास बन गया 1+x ex अपॉन 1+x होल स्क्वायर dx माइनस ex अपॉन 1+x होल स्क्वायर dx. ये हमारे पास दो फंक्शंस बन गए. और वी कैन अप्लाई हेयर द थ्योरम आल्सो. इसको अगर हम वो थ्योरम देखें, इसको इरेज कर देते हैं स्टेप को, तो थोड़ा इजी रहेगा. जो अभी अभी हमने एक थ्योरम पहले किया था, देखिए यहाँ पर ये ऐसे इसको लिखें 1+x अपॉन 1+x होल स्क्वायर माइनस 1/1+x होल स्क्वायर ex dx. सी ये कैंसिल हो जाएगा. सो ये हमारे पास रह जाएगा 1+x माइनस 1+x होल स्क्वायर dx. अब देखिए
अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था, व्हाट वाज दैट, EX इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर ये हमारे पास आता है, सो स्ट्रेट वे आर आंसर विल बी दिस वन। तो यहाँ पर देखें, बिकॉज व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/1 प्लस एक्स। लगाइए क्वेश्चन रूल, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर into derivative of denominator. So this is equal to 0 because derivative of constant is 0 minus, and what is the derivative of 1 plus x, that is 1 upon 1 plus x whole square. So this is equal to 1 plus x whole square. See, ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव है, so that means integration of EX we can write it like this, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। सो क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू EX इंटू जो हमारे पास fx है, fx क्या है, 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। वाई, ये वाला, ये रिजल्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया, ये थ्योरम जिसको हमने बिगिनिंग में प्रूव किया था। ये देखिए यहाँ पर, ये दिस वन, इस थ्योरम को हमने लास्ट जो हमारा 17 प्रॉब्लम है उसमें अप्लाई किया and we have solved it. So in this lecture we have done the method of integration, that is integration by parts. और क्या है integration by parts, कि उसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, द ऑर्डर ऑफ रेफरेंस ऑफ द फंक्शन। क्या लें, उसके लिए एक वर्ड है आईलेट, जिसमें लेटर है ILATE। तो जो ऑर्डर ऑफ रेफरेंस ऑफ लेटर है वही ऑर्डर ऑफ रेफरेंस ऑफ फंक्शंस हमने रखना है। जो लेटर पहले है उस टाइप का जो फंक्शन है उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और दूसरे को सेकंड। थैंक यू।